Let me first start by thanking our dear Chief Minister of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis, for taking the time from his super busy schedule to keep up his promise to be with here at us, all of you here at ImagiNext. Really happy to see you again. Thank you so much. It's always a pleasure to have a conversation with you. Yes. And that is also one point which brought me here. Oh, usually people don't want to do that. They don't want to do that. But see, I've come prepared with all these notes. My team has told me stay with the script because I tend to go off script too often. But on a personal note, let me say that the man sitting to my left, and I'm not prone to flattering politicians, I think Maharashtra is blessed to have him as a chief minister. He is one thing about him, he works 24/7. Perhaps in my journalistic career, one of the most meticulous, hardworking, and he constantly educates himself on technology. So you are probably one of the finest people to speak at this event. Usually, Mr. Fadnavis, when people have to talk about technology, science, investments, politicians don't like it, but you have it on your fingertips, so you're ideal. So thank you very much. Thank you so and much. What you're doing for Maharashtra is brilliant. Brilliant. I just want to start by saying that on the 29th of April, the Maharashtra cabinet, chaired by Mr. Fadnavis, approved the Maharashtra AI Policy 2026. And I wanted to start by talking a little bit about it. The headline commitments are an investment target of more than 10,000 crores and over 1.5 lakh jobs by 2031, 6 AI centers of excellence across health, education, agriculture, urban development, Marathi language and culture, and finance, 5 AI innovation cities, a 500 crore AI startup fund, 12 AI incubators, AI skilling for 2 lakh young people and professionals, and a shared compute backbone of 2,000 GPUs delivered as a computer as a service to government departments. This level of thinking on AI, this level of detail, and I would say commitment to AI, perhaps you would be number one across the country if there were to be a ranking of states. So this session matters, and the nation wants to know, Mr. Fadnavis, why you're doing this with such great interest and speed. No, thank you. I think that's the most important question because, we are into an era where AI is revolutionizing every single thing. And, when a wave comes, you cannot stop the wave. Technology wave, you have to ride on it. And now is a time when AI is going to reshape every aspect of our business, every aspect of our life. So we thought it is very important that if we have to retain our place in the economic scenario, in the business, in the industry, we have to do adoption of AI very fast. And that is why we started this policy. We started a new portfolio, a new department of AI, a commissionerate of AI. And there are 2 things. One is adoption of AI in governance, which we have already started. I would like to give you 2 examples, what we have already done. One is that we have started an engine whereby we are using AI in criminal justice system and, entire handling of our criminal system. So there is one institution which we have created. This institution has totally digitized the process of crime solution. We have done it with Microsoft. Now we'll be also doing it with some of our indigenous, technology providers. But what is the difference? From a crime scene to a charge sheet,
the entire process is digitized, the entire process is in blockchain. So that will reduce the time to a large extent. And in criminal justice system, there are so many miscarriages. There will be no miscarriage once this entire system is under a blockchain. And AI is revolutionizing it so fast that now we are also using a model where when we interrogate somebody, all the interrogation is captured and it's put in the perspective whereby how a criminal justice system requires somebody being interrogated. Everything is covered by that. Now here is let's say crime solving. The second example is what we created is Mahavistar. Now this Mahavistar is a AI engine created for farmers. Mahavistar app, now it is downloaded by 50 lakh farmers in India, in Maharashtra, and it is one-stop solution for everything in agriculture. It gives a agentic AI perspective whereby every single farmer gets his own agentic friend, his own agent, whereby he can ask any question, anything. Any question, he gets a reply on that. He can speak in any language. Now we have also integrated the tribal language Bhili. So a tribal belonging to a tribal community who speaks Bhili language can ask him. And this is to the extent that they'll get the weather data, they'll get the, if the crop cycle is analyzed, everything they will get. So I'll tell you just one thing, that if in a cropping cycle, if they just take a photograph by a smartphone, that photograph will analyze the entire crop and it will tell them at what cycle the crop is. If there is a apprehension of pests, if it is so, then what pesticide should they use? If it requires a micronutrient, then what type of micronutrient they should use? And this any common farmer can do. Okay. So I think that we have already started using this. And so far as creating the computing power is concerned, as you know that you have mentioned about 2000 GPU. Yes. There was a time when Yes. we used to, when we were very young, we used to talk about CPU, but CPU is, no more now a computing power. It is GPU. What we are trying to create is to create a common facility, a common computing facility. I'm telling in very simple words, because today, when you talk about startups, all startups require huge computing facility, and this computing facility is, is very expensive. Ji. If they buy it from somebody, if they partner it with somebody. So what we are essentially creating is that this entire capacity will be created on a shared model, which can be used by any startup, which can be used by any business. So that will put us ahead of everybody. Because ultimately, when you have this computing facility, Wonderful. then I think that will change every sphere of business. So this particular policy which I am talking about is a policy which is going to put Maharashtra ahead of every state. अमेजिंग, आप बहुत कॉम्पिटिटिव है महाराष्ट्र को लेकर, अच्छी बात है. और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, आई मूव टू हिंदी अ लिटिल बिट इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज आई वांट दिस टू रीच एज मेनी पीपल एज, कैन आई मिक्स बिटवीन इंग्लिश हिंदी? ठीक है. क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी कभी कभी लेट आती है, मगर अडॉप्शन बहुत क्विकली हो जाती है. बिल्कुल. और टेक्नोलॉजी की यूसेज जो है, ये हम मानते हैं कभी कभी कि कोई आम किसान ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाएंगे, मगर हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भारत से ज़्यादा स्पीड में और कहीं नहीं होती. कोई आप शेयर करना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि दिस इज़ यूज्ड बाय कॉमन फार्मर्स, तो स्केल अगर बनानी है तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन
by the masses is very important. उसके लिए कुछ कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम लोग अगर कुछ एक 20-30 साल पहले जाएंगे तो जिस समय हमारे यहाँ पर कंप्यूटर्स आए जी, तो हमारे यहाँ पर कुछ नेता कहते थे कि ये कंप्यूटर तो देश को बर्बाद कर देंगे, ये कंप्यूटर तो देश में इतनी बेरोजगारी तैयार कर देंगे कि देश बर्बाद हो जाएगा। जी। फिर किसी ने पूछा था कि कंप्यूटर धान उगा लेंगे। जी। तो कई बातें हमने कही थी, लेकिन अल्टीमेटली भी अडॉप्टेड, हमने उसको Absolutely, yes. उसका अडॉप्शन किया, उससे चीज़ें बदली। जी, फिर .com का बूम आया, हम लोग उस बूम में चले गए। उस समय भी कई लोगों ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे थे, लेकिन इंडिया कुड लीड दैट रिवोल्यूशन। हमारे लोगों ने दुनिया के मतलब सिलिकॉन वैली में जाकर, सब जगह जाकर इंडियंस ने एक प्रकार से इसको ये .com बूम को लीड करने का काम किया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अब जब हम AI के एरा में आए हैं जी, तो हम लोगों को ओपन आर्म से इसका स्वागत करना चाहिए, और लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया महाविस्तार ऐप का, मतलब मुझे भी शुरुआत में लग रहा था कि हमने बना तो लिया है, पर क्या किसान इसको यूज़ करेंगे? किसान इसका यूज़ कर रहे हैं, किसान उस पर प्रश्न पूछ रहे हैं, और उसके कारण आप जानते हैं AI का तो ये होता है कि जितना डेटा जनरेट होता है उतना वो मॉडल ट्रेन होते जाता है। जी, तो इतना एक्यूरेटली ट्रेन हो रहा है। अभी करीब करीब हम लोगों ने देखा कि क्रॉपिंग साइकिल में हम लोग जो फोटो के माध्यम से उसका एनालिसिस कर रहे हैं, अब उसका धीरे धीरे ट्रेनिंग होते हुए एक्यूरेसी 80% पहुंची है, और मैं ऐसा मानता हूं कि एक साल 2 साल में दैट विल रीच 90%। तो मुझे लगता है कि अब लोगों में, और विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां हमारी मतलब एक एस्पिरेशनल और बहुत ही यंग पॉपुलेशन है, जहां आपके 65% लोग 35 साल से नीचे के हैं, यहाँ पर तो AI एडॉप्शन ये कठिन होना ही नहीं चाहिए। और देखिए जिस समय हमारा स्मार्टफोन आया तो मेरे जैसा आदमी भी सोचता था यार ये पुराना ठीक था, बटन दबाते थे, बिना ये बटन के क्या कीपैड आ गया। लेकिन हम भी सीखे और हमारे पहले की जनरेशन भी सीख गई। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इंडियंस इसको अडॉप्ट करते हैं, आपको ओपन आर्म से उसको मतलब उसका स्वागत भी करना चाहिए, और सरकार ने या बिजनेसेस ने इसका विचार न करते हुए कि क्या लोग इसको स्वीकारेंगे, आगे बढ़ना चाहिए। तो फडणवीस जी, अभी इस वक्त जैसे बहुत स्टेट्स compete करते हैं आपके साथ, और महाराष्ट्र आज एक आई थिंक इट्स $660 billion इकोनॉमी, राइट? एंड यू आर अट्रैक्टिंग 31% ऑफ इंडियाज FDI एज ऑफ नाउ। जब FDI बाहर भी जा रही है, स्टिल यू अट्रैक्ट ओवर 31%, मतलब आप टॉप पोजिशन पे हैं। एंड बाय द वे कंग्रेचुलेशंस आपको डेवोस में, आई थिंक यू गॉट इन्वेस्टमेंट प्लेजेस ऑफ 200 billion फ्रॉम डेवोस अलोन। सो पूछता है भारत कि ये कन्वर्जन होगा कि नहीं इन MOUs का, पहला सवाल। दूसरा, you have a target of a $1 trillion economy by 2030. Is this achievable? Some people feel that you have set a very stiff target. You know, 1 trillion economy. Why are you setting such a target for yourself? और उसमें अगर महाराष्ट्र के पोल पोजीशन को रखना है, इस संदर्भ में ImagiNext के कॉन्टेक्स्ट में आप टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट उस 1 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए बाय 2030? अभी सिर्फ 3.5 साल ही बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा। मैंने $1 ट्रिलियन की बात करी थी इन 2015। तब से मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। 2015 में हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, वो थी करीब 14 लाख करोड़ की, 14 लाख करोड़। एंड टुडे वी आर 54 लाख करोड़। इन 10 years हमने ट्रिपल से भी ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा किया है। और आज अगर हम देखेंगे तो देश में कई राज्य ये कहते हैं कि वी वांट टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जो इस टारगेट के पास है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी 660 बिलियन। और आप अगर देखेंगे तो कोविड ईयर्स छोड़कर हमारा नॉमिनल ग्रोथ रेट 10% रहा है। 10% CAGR से हम लोग ग्रो हुए हैं। इसी ग्रोथ रेट को भी हम मेंटेन रखते हैं, तब भी हम 2030 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। हाँ, अगर ये हो सकता है कि एक आधा साल, जैसे ये साल अल नीनो का है, पता नहीं अगर
थोड़ा हो जाए तो 1 साल और आगे चला जाएगा, बट वी आर एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक। और मैं उससे जाकर आपको कहना चाहता हूँ आगे जाकर कि आज महाराष्ट्र इन साइज ऑफ इकोनॉमी वी आर नॉट कम्पीटिंग विथ एनी स्टेट इन इंडिया। हम बाकी स्टेट से बहुत आगे हैं। अभी अगर हम लोग बाय साइज देखेंगे तो वी आर, महाराष्ट्र इज 30th लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अर्णव जी, इन नेक्स्ट 2 to 3 years वी विल सरपास द इकोनॉमी ऑफ सिंगापुर एंड यूएई। उनकी इकोनॉमी को हम सरपास करेंगे। इसलिए ये जो टारगेट हमने हाथ में लिया है ये बिल्कुल अचीवेबल टारगेट है। और जो आपने कहा ये अचीव क्यों होगा, केवल टेक्नोलॉजी के कारण अचीव होगा। देखिए, टेक्नोलॉजी ये फोर्स मल्टीप्लायर है, एआई ये फोर्स मल्टीप्लायर है। आप लीप फ्रॉग कर सकते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। आज अगर हम लोग देखेंगे तो इतनी तेजी के साथ, मतलब आप देखिए कि महाराष्ट्र बना तब से लेकर 2014-15 तक आपकी अर्थव्यवस्था 13 लाख करोड़ की, और 10 साल में आपकी अर्थव्यवस्था अगर 13 लाख करोड़ से 54 लाख करोड़ पर जाती है तो इसका मतलब है कि ये लीप फ्रॉग हो रही है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग इसको कर पाएंगे। और हम लोगों ने केवल टारगेट नहीं रखा है, हमने उसका एक प्लान तैयार किया, एक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी तैयार की। उस कमेटी ने सारे सेक्टर्स के साथ बैठकर हर सेक्टर में हमको क्या करना है इसका निर्णय हमने किया। उसके बाद हमने विकसित महाराष्ट्र 2047 ये विजन तैयार किया। इस विजन में 2030 का विजन जो शॉर्ट टर्म है, 35 का विजन जब महाराष्ट्र 75 साल का होगा ये मिड टर्म है, और 47 इज अ लॉन्ग टर्म विजन। और केवल विजन तैयार करके हम रुके नहीं, तो हम लोगों ने 2000 डेटा पॉइंट्स तैयार किए, 2000 डेटा पॉइंट्स कि जिसको हम लोगों को अचीव करना है। उन डेटा पॉइंट्स को वापस हम लोगों ने एक एक डिपार्टमेंट को दिया और एक विजन मैनेजमेंट यूनिट तैयार किया है। जो विजन मैनेजमेंट यूनिट ये डायनामिकली एक एक डिपार्टमेंट के डेटा पॉइंट्स को ट्रैक करता है कि आपने इस साल कौन से डेटा पॉइंट करने हैं, अगले साल कौन से करने हैं, कितने आप कर पाए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने जो भी चैलेंजेस दिए, हमारा इसमें जो मतलब एक सक्सेस रेट जो रहा, तो डिपार्टमेंट्स ने, जो लोएस्ट भी डिपार्टमेंट था वो भी 75% था, जो हाईएस्ट था वो 95% था। तो मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट अ मियर फिगर या इट इज़ नॉट अ मियर नंबर, तो एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत हम लोग जा रहे हैं। और इसमें कंप्लीटली ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इसमें हम एआई का उपयोग कर रहे हैं, इसमें हम जियो स्पेशियल डेटा का उपयोग कर रहे हैं, इसमें हम डेटा ट्रैकिंग का उपयोग कर रहे हैं, इसमें हम डेटा पूल का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल संभव है। और दूसरा जो आपने कहा कि एमओयूज़ के बारे में, और ये बिल्कुल लोगों में हमेशा ये भावना होती है कि यू टॉक अबाउट द नंबर्स, आप कहते हैं इतने एमओयू हो गए, ये ट्रांसलेट हो गए कि नहीं। मुझे एक चीज़ बोलनी है कि इंडिया में अगर पैन इंडिया हम देखें तो जितने हम लोग एमओयूज़ करते हैं उसका रियल ट्रांसलेशन का जो रेट है वो 35% है। महाराष्ट्र में वो हिस्टोरिकली 55 to 60% है। लेकिन हमने जो डावोस में एमओयू किए उसका जो ट्रांसलेशन का रेट है इट इज़ 85%। 85% हम लोग कर पाए, और जो 15% भी हम लोग नहीं कर पा रहे वो ग्लोबल हेडविंड्स के कारण, आज जिस प्रकार से सप्लाई चेन शिफ्ट होती है उसके कारण, या कोई देश बैरियर्स तैयार कर देते हैं, तो आज हम लोग तय करते हैं और उसके बाद वो बिजनेस अनवायबल हो जाता है। ऐसे ही 15% है। तो मुझे लगता है हम लोगों ने किए हुए, क्योंकि हम लोगों ने हर एमओयू के पीछे रिलेशनशिप मैनेजर रखा हुआ है, हर एमओयू के पीछे ट्रैकिंग सिस्टम रखी हुई है। मैं खुद मेरे वॉर रूम में एमओयूज़ के बारे में मीटिंग्स लेता हूँ, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाता हूँ, उनको मैं पूछता हूँ उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि इनको हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ऑफ ट्रैक एक सवाल। जी बिल्कुल। आप पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को कैसे सेपरेट करते हैं? पहला सवाल। आपकी 3 पार्टी की कोalition गवर्नमेंट है, इससे नुकसान होता है कि फ़ायदा? आपकी गवर्नेंस मॉडल स्लो हो जाती है क्या कभी कभी? आप सेपरेट कैसे करते हैं? आप किस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं देवेंद्र जी?
आप पॉलिटिक्स को ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि गवर्नेंस को ज़्यादा एंजॉय करते हैं? ये देखिए, ये सब सवाल जो है देवेंद्र जी, आपको मैं 20 साल से जानता हूँ, आई कैन टेक लिबर्टी विथ या बाकी कोई रिपोर्टर तो आपको पूछ नहीं सकते. व्हाट डू यू एंजॉय मोर? सच बात तो है कि आपने मेरा स्वभाव देखा है, तो आई एंजॉय गवर्नेंस मोर. मैं मतलब पॉलिटिक्स इज़ इनएविटेबल, सो उस पॉलिटिक्स में मुझे जिंदा भी रहना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है, और कई बार ऐसी भी चीज़ें करनी पड़ती है कि जो मतलब विच इज़ नॉट माई नेचर, विच आई डोंट बिलोंग टू दैट यू नो दैट पार्ट. बट अल्टीमेटली आप पॉलिटिक्स में जीवित रहेंगे तो ही गवर्नेंस कर पाएंगे, तो मैंने इसको समझ लिया है. लेकिन आई एंजॉय गवर्नेंस. और आपने जो बात कही, इसमें एक गवर्नेंस का जो मॉडल मैंने तैयार किया है, देखिए मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात कहना चाहता हूँ कि व्हेन आई बिकेम चीफ मिनिस्टर फर्स्ट टाइम, तो उस समय एक बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर मुझे मिले, और उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ. मैंने कहा बताइए. कहा मैंने कई चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया है सर, चीफ मिनिस्टर का समय अपना नहीं होता है. लोग आपका समय जो है वो हाईजैक कर लेते हैं. इसलिए मैंने देखा है कई चीफ मिनिस्टर दे वर वेल मीनिंग, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए. सर आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो गवर्नेंस में ऑफिशियली जो करना चाहते हैं, रात में तय कीजिए, दूसरे दिन कुछ भी करके वो कीजिए, और बाकी बचा हुआ समय आप पॉलिटिक्स को दे दीजिए या लोगों को दे दीजिए. तो मुझे वो बात अच्छी लगी, और तब से मैंने बिल्कुल वो एक प्रकार से मेरा वे ऑफ लाइफ हो गया कि जो चीज़ें करनी है वो चीज़ें उस दिन करना ही है, बाकी फिर. और ये बात सही है, क्योंकि सुबह उठने के बाद कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है तो हमारी सारा अटेंशन उसकी तरफ हो जाता है, कहीं कोई इंसिडेंस हो गया है, तो रोज़ के चैलेंजेस है. उन चैलेंजेस में आप अगर अटक गए, और ये चीज़ मैंने बहुत करीब से हमारे प्रधानमंत्री जी की भी देखी है, दुनिया में कुछ भी हो जाए प्रधानमंत्री जी अपना एजेंडा कभी छोड़ते नहीं, वो एजेंडा कंप्लीट करते फिर दुनिया की चीज़ों में जाते हैं. तो मैंने भी उसको हमेशा उसी प्रकार से किया है. और जहाँ तक 3 पार्टियों का सवाल है, तो मुझे लगता है कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आता है. देखिए पॉलिटिकली प्रॉब्लम आता है, गवर्नेंस में नहीं आता. गवर्नेंस में और मोस्टली बोथ द पार्टीज आर अलाइंड विथ माई विजन. तो कभी कभी छोटी मोटी चीज़ों में अल्टीमेटली अलग अलग पार्टियाँ हैं तो प्रॉब्लम्स आते हैं. लेकिन हम लोग तो ये भी देखते हैं ना कि कई बार कई राज्यों में हमने ऐसा भी देखा है कि सिंगल पार्टी का राज होता है, लेकिन उस पार्टी में ही, जैसे हमने अभी केरला में कम्युनिस्टों की जो सरकार थी, उस सरकार में हमने देखा कि सिंगल पार्टी की सरकार थी, लेकिन इतने उसी पार्टी में झंझट झमेले चलते थे. कर्नाटक में हम लोग देख रहे हैं सिंगल पार्टी की कांग्रेस की सरकार है, लेकिन रोज एक दूसरे की ऐसी टांग खींच रहे हैं. इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सिंगल पार्टी या मल्टी पार्टी ये कोई बहुत मायने नहीं रखता. आपका एजेंडा क्या है, उस एजेंडे को आप किस प्रकार से उसका पीछा करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है. बहुत अच्छा सा जवाब है आपका. मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ता है जो मेरे स्वभाव में नहीं है. करना पड़ता है, क्या करें फडणवीस. बट एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करता हूँ, व्हेनेवर जब भी आपसे बात हुई है, जब बड़ी राजनीतिक असमंजस चल रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल टेंशन, ही कम्स, कभी भी हमारे सामने आते हैं, ही स्माइलिंग जैसे कोई स्पा या सोना से निकले हैं, बिल्कुल फ्रेश, रिलैक्स. दुनिया भर में टेंशन है, सारे रिपोर्टर्स इधर सब खड़े हैं आपके पीछे, अलीशा नायर आपके पीछे भागती है, आप ऐसे स्माइल करके आते हैं जस्ट यू हैव जस्ट कम फ्रॉम अ स्पा. इट्स फैंटेस्टिक. इट्स वेरी गुड. एक्चुअली गवर्नेंस और पॉलिटिक्स को सेपरेट करना पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी चैलेंज है. तो आपने कंपेटिटिवनेस के बारे में कहा, आपने कहा आप टेक्नोलॉजी स्टैक को यूज़ करेंगे. पिछले 2 साल से मैं जब मुंबई में आता हूँ तो देखा कोस्टल रोड, अटल सेतु, मेट्रो 3, नवी मुंबई प्रोजेक्ट, 3 ट्रिलियन रिंग रोड नेटवर्क, पूरा रीडिज़ाइनिंग. आई एम सीइंग अ, and I think you are all very fortunate in Mumbai. You are seeing a redesigning of Mumbai, and I think you are to take the credit for that. Do you really think that Mumbai, क्या आप एक तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ या टेक्नोलॉजी स्टैक के साथ या अपने AI प्लान के साथ आप ग्लोबल एशियन हब्स जो हैं दुबई और सिंगापुर के साथ, इज इट पॉसिबल नाउ टू डायरेक्टली कम्पीट? अभी हमने मिडल ईस्ट की क्राइसिस देखी, सडनली पीपल जो दुबई गए थे दे आर ट्राइंग टू फाइंड वेज टू कम बैक. ये एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए. ग्लोबल हेडविंड्स जो हो रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटी है. तो मैं ये पूछना चाहता था कि जो FDI इन्फ्लोज हो रहे हैं आपके, क्या आप
महाराष्ट्र क्या मुंबई के स्ट्रक्चरल एडवांटेज को यूज करके मुंबई की रीपोजिशनिंग डिलिबरेटली कर रहे हैं? क्या इसमें कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग प्लान है आपका कि आपने सोचा है कि आई हैव टू रीच द टारगेट, 1-2 साल इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, इसलिए क्या आप रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ टेक्नोलॉजी स्टैक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबका गेम प्लान चेंज कर रहे हैं? आपकी सोच क्या है उसमें? व्हाट इज योर थिंकिंग? करीब करीब ऐसी ही सोच है, क्योंकि देखिए जिस समय आईटी की वेव आई, मुंबई लॉस्ट ऑन आईटी वेव, और उसका एक कारण ये था कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए उस समय आईटी इंडस्ट्री ये मानती थी कि 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में रेंटल जगह अगर हमको मिलेगी तो हम लोग आईटी में एक प्रकार से सक्सेसफुल हो सकते हैं। मुंबई कुड नॉट ऑफर कंप्लीट, देखिए एक नेचुरल इकोसिस्टम मुंबई और पुणे में तो है, लेकिन उसका जो मेजर एडवांटेज है ये उस समय बेंगलोर को गया और हैदराबाद को गया। इसलिए अब ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है उसको कंप्लीट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मैंने मुंबई को केवल मुंबई के रूप में नहीं देखा है, तो वी आर इमेजिनिंग मुंबई विथ अलॉन्ग विथ एमएमआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। सो न्यू मुंबई और रायगढ़, ये जो सारा क्षेत्र है, एमएमआर रीजन को हम लोगों ने अभी इंटीग्रेट किया है। अटल सेतु के कारण अब हिंटरलैंड ये मुंबई से कनेक्ट हो गया है। आप देखिए आज यहाँ जहाँ आप बैठे वहाँ से भी आप न्यू मुंबई बहुत कम समय में पहुँच सकते हो, और अभी हमारी 2-3 और लिंक हो जाएगी तो आप तो 30-35 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो इसलिए एक प्रकार से हिंटरलैंड को जोड़ने का काम किया है। और जो मुंबई है उसको री इमेजिन हम लोग कर रहे हैं। कंप्लीट मुंबई इज गोइंग इनटू रीडेवलपमेंट, क्योंकि मुंबई ये लैंडलॉक सिटी है। यहाँ पर जो स्पेस है उसका हम लोगों को स्मार्ट, सस्टेनेबल इस प्रकार से उपयोग करना पड़ेगा। उस प्रकार का कंप्लीट रीडिजाइनिंग हम लोगों ने मुंबई का किया है। इसमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, हम लोग अभी कोस्टल रोड का, नॉर्थ कोस्टल रोड तैयार कर रहे हैं। तो पूरा जो मुंबई का मतलब कोलाबा से या नरीमन पॉइंट से लेकर तो आपको भाईंदर तक कंप्लीट एक सिंगल रोड ऐसा मिलेगा कि जहाँ पर कहीं पर भी आपको एक भी सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का हम लोग इसका तो डिजाइनिंग हमारा काम भी चालू हो गया है। हम लोग ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के लिए टनल्स तैयार कर रहे हैं, उसका भी काम हमने चालू कर दिया है। एक टनल्स का बड़ा नेटवर्क हम तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पुराने मुंबई के लेआउट्स हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले तैयार हुए, माड़ा ने 56 लेआउट्स तैयार किए हैं अलग, इसका कंप्लीट रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। इस रीडेवलपमेंट के कारण यहाँ पर हाउसिंग स्टॉक भी मिलेगा, कमर्शियल स्पेसेस भी मिलेगी, और साथ में मुंबई को जो ओपन स्पेसेस चाहिए, मुंबई को जो सांस लेने के लिए जगह चाहिए, वो जगह भी उसके कारण क्रिएट होगी। तो ये जो हमारा 400 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क है, इसके कारण कंप्लीट इंटीग्रेशन हो रहा है। अब सेकंड फेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए अगर हम लोगों को मुंबई एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ हब ये अगर तैयार करना है तो हमको प्लग एंड प्ले सिटीज तैयार करनी पड़ेगी जी। क्योंकि आज का मॉडल हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के 6ठे फेज में चल रहे हैं, 4th, 5th, 6th एक साथ चल रहा है। इसमें हम लोगों को प्लग एंड प्ले सिटीज तैयार करनी पड़ेगी। न्यू मुंबई एयरपोर्ट और अटल सेतु, इसके बीच मुंबई से बड़ा एक अर्बन एरिया हम लोगों ने तैयार किया है, जिसको हम लोग थीमेटिक सिटीज के रूप में डेवलप कर रहे हैं। वहाँ एक एजू सिटी तैयार हो रही है। इस एजू सिटी में 12 दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज, जिसमें से 7 ऑलरेडी आ गई है। ये यूनिवर्सिटीज 1 लाख बच्चों को पढ़ाएगी और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और रिसर्च वहाँ चलेगा। उसके साथ में हम लोग मेडिसिटी कर रहे हैं, उसके साथ हम जीसीसी सिटी कर रहे हैं, उसके साथ हम इनोवेशन सिटी कर रहे हैं। और व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, इसमें से कोई चीज़ कागज पर नहीं है, हर चीज़ कागज से आगे बढ़ चुकी है, इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर जा चुकी है। यही सारा एरिया है जहाँ पर भारत का 60% डेटा सेंटर कैपेसिटी तैयार हुआ है। और जैसा आपने कहा कि अभी जिस प्रकार से यूएई में या बाकी सारी जगह पर ये वॉर के कारण क्राइसिस तैयार हुआ है, वी एक्सपेक्ट कि हम लोगों की जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है, और स्पेशली जो सारे हाइपर स्केलर्स है या हाइपर स्केलर्स है, ये सारे अब मुंबई आना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, जगह की, पावर की, पानी की, सारी तैयारी हम करके बैठे हुए।
आज अगर भारत में डेटा सेंटर के लिए रेडी पावर और ट्रेसेबल ग्रीन पावर अगर किसी के पास है तो महाराष्ट्र के पास है। कॉरिडोर हमारे तैयार है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्लग एंड प्ले इस प्रकार की कंप्लीट इकोसिस्टम हम तैयार कर रहे हैं जो निश्चित रूप से दुबई के साथ या सिंगापुर के साथ compete कर पाएगी। चिप फैब्रिकेशन में आपकी बहुत अग्रेसिव रेस चल रही है गुजरात के साथ। अब चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इज योर फ्रेंड? यू टॉक टू हिम? Absolutely. You discuss chip fabrication? क्योंकि chip fabrication में how can you be friends? अब गुजरात, India's first chip fabrication plant गुजरात में हो रही है। महाराष्ट्र फ्लैगशिप सेमीकंडक्टर बेल्ट जो है वो $10 बिलियन की पनवेल की आपकी शायद फैसिलिटी है। आप कैंडिडली हमारे रूम को ये बताइए, ये चिप वैल्यू चेन में, इन द चिप वैल्यू चेन, what can Maharashtra win and what has Maharashtra already lost on chips? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में हैं। Yes. स्टेट्स आर कम्पीटिंग विथ ईच अदर। और आपके और मेरे मित्र उद्धव ठाकरे जी ये जिस समय चीफ मिनिस्टर थे उस समय आपके मित्र जरूर हैं, मैं क्या कहूँ, मेरा अनुभव कुछ अलग है उनके साथ और उनके तो वी आपके फ्रेंड हैं, मुझे पता है। वी लॉस्ट दिस चिप का आपका मतलब जो फैब की In that time. ये है वो इट वेंट टू गुजरात। Yes. लेकिन मैं जैसा आपने कहा कि हम लोगों ने, क्योंकि ये 8 स्टेप की वैल्यू चेन होती है और इसमें कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ नॉट जस्ट मतलब फैब इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल थिंग। तो आज चिप मैन्युफैक्चरिंग भले ही गुजरात कर रहा है, हमारे यहाँ भी अभी जैसा आपने कहा कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उसमें आई है, लेकिन हम पीछे हैं। दे आर मच अहेड ऑफ अस। उनका तो दे हैव इनटू प्रोडक्शन। बट इस वैल्यू चेन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? दैट इज OSAT एंड ATMP। जो चिप हमारी तैयार होती है उसकी क्वालिटी, उसका डिज़ाइनिंग और उसका पैकेजिंग, ये 3 इस वैल्यू चेन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ये तीनों चीज़ें ये महाराष्ट्र में हो रही है। वी आर वेल अहेड। उसकी सबसे बड़ी कैपेसिटी ये महाराष्ट्र में तैयार हुई है। और विशेष रूप से RRP जो हमारे मुंबई के पास में ही है, उन्होंने जिस प्रकार से इसको तैयार किया है, इसको रीइमेजिन किया है और अभी उनकी फैसिलिटी जिस प्रकार से नया एक्सपेंशन कर रही है, तो उसके कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि इस वैल्यू चेन के हम सबसे बड़े प्लेयर बन रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, हमारा पैसा चिप बनाने में नहीं जा रहा है, उसमें वैल्यू ऐड करने में जा रहा है। हम लोग उसका डिज़ाइनिंग, आज देश का 25% डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनर्स ये मुंबई में बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि उस वैल्यू चेन में हम लोगों ने अपनी जगह बनाई है। धीरे धीरे चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो हम पीछे उस सेगमेंट में पड़े हैं उसमें भी हम लोग कैचअप कर लेंगे। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग कि आप अपने एक डिफरेंशिएटेड सेगमेंट में लीडर बनने का आपका क्लियर प्लान है। यही बहुत सराहनीय है। इट इज कंप्लीटली अमेजिंग दैट यू आर थिंकिंग लाइक दिस। आपने AI में भी कहा है वी वांट टू डू एथिकल एंड इंक्लूसिव AI। Yes. क्या ये सिर्फ एक स्लोगन है फडणवीस जी, और इज इट समथिंग दैट यू वांट टू पुट इन प्रैक्टिस? बिल्कुल। देखिए, AI अगर एथिकल न हो तो ये एक प्रकार से हम सबका जीवन खराब कर देगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब ग्लोबल AI समिट का उद्घाटन किया था, तब एक ग्लोबल अलायंस उन्होंने तैयार किया फॉर एथिकल AI। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई पावर ये बहुत डिसरप्टिव है, ये अगर गलत तरीके से उपयोग में आ जाए, आज हम लोग देखते हैं कि लोग मजाक में ही करते हैं, लेकिन AI का उपयोग करके मीम्स तैयार कर देते हैं। आपकी और मेरी जो फोटोज़ मतलब नहीं है वो भी तैयार हो जाती है, कुछ भी रील्स तैयार हो जाती है। ठीक है, वो एंटरटेनमेंट के लिए अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बदल रही है कि इसमें लोगों का नुकसान हो सकता है, कम्युनिटीज़ का नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने एथिकल AI पर ही जोर दिया है। सो एंटायर AI पॉलिसी रिवॉल्व्स अराउंड एथिकल AI। और इसमें डेटा सॉवरेंटी और डेटा सिक्योरिटी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि AI मॉडल जो ट्रेन होते हैं ये अल्टीमेटली यू नो व्हेन यू सैंडबॉक्स डेटा सेट, तो उसी के ऊपर वो ट्रेन होते हैं।
तो उस समय अगर हम लोग ये जो हमारे पास सबसे ज़्यादा डेटा अगर किसी के पास है तो सरकार के पास है, उस डेटा को अगर हम एथिकली यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमने पूरा आर्किटेक्चर जो एआई पॉलिसी में तैयार किया है, इट इज़ अराउंड एथिकल एआई, और हम लोग उसको निश्चित रूप से करेंगे। इट इज़ नॉट अ मियर स्लोगन, इट इज़ नेसेसिटी ऑफ द डे। Fantastic. My last question is on the most important issue of jobs. Jobs. Abhi, the Chief Minister of the largest state economy of India sitting with me has said that roughly 70% of jobs will be reshaped by AI. आपने कहा है कि 70% जॉब्स एआई से रीशेप हो जाएंगी, मतलब या तो वो चली जाएंगी या फिर नेचर बदल जाएगा या फिर कन्फिगर होगा। और आपने कहा है कि आप यू आर टारगेटिंग 1.5 लाख नेट न्यू जॉब्स। नाउ हाउ कैन बोथ ऑफ दीज थिंग्स बी ट्रू? देखिए, बोथ ऑफ दिस थिंग्स आर ट्रू। जहाँ तक एआई पॉलिसी से तैयार होने वाले जॉब्स है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक लिमिटेड है, यानी वो जो हमने टारगेट किए, बाकी जॉब्स ये प्राइवेट सेक्टर तैयार करने वाला है, सो उसको हमने मेंशन नहीं किया है। लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो बहुत समय नहीं, इन नेक्स्ट 1000 डेज, 1000 दिनों में हमारे 70% जॉब्स का नेचर चेंज होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब्स जाएंगे, लोगों को रिस्केल करना पड़ेगा, लोगों को अपस्केल करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर बहुत सिंपल उदाहरण है कि जिस समय कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर आने के बाद कई चीज़ें कम हो गई, हमारे टाइपिस्ट कम हो गए, हमारा जो हम लोग जिस प्रकार से लेजर्स रखते थे बड़े बड़े लाल रंग के, वो समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से चीज़ें बदलेगी। मतलब आज देखिए कि पहले ये होता था कि जो एक बड़ा सीईओ होता था उसके साथ एक स्टेनो घूमता था, एंड ही यूज्ड टू स्पीक, और स्टेनो शॉर्ट हैंड में लिखता था, फिर उसको टाइप करके लाता था। उसकी आवश्यकता ही नहीं है, एआई ने उसको समाप्त कर दिया है। तो इसलिए नेचर ऑफ जॉब चेंज होगा। देखिए, मैंने बहुत पहले ये पढ़ा था इन 2017, जब एआई बड़ी तेज़ी से आ रहा था, उस समय एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि एआई के कारण 23 ग्लोबली उन्होंने विचार किया था, तो 23 करोड़ जॉब्स ऐसे कि जो जॉब्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा था 25 करोड़ ऐसे जॉब्स हैं जो नए तैयार होंगे। तो मुझे ये लगता है कि जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो नेचर ऑफ जॉब चेंज होता ही है। आज देखिए, आप मतलब चैट जीपीटी को या क्लाउडे को या ग्रॉक को एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं तो आपका आधा काम वो करके दे देता है। तो इसलिए जॉब का नेचर चेंज हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग तेज़ी से अडॉप्शन करेंगे और तेज़ी से हम लोग रिस्किलिंग अपस्किलिंग करेंगे तो इसमें जॉब जाने का खतरा मैं नहीं मानता। वो बहुत कम लोग हैं, कुछ लोगों का जा भी सकता है, लेकिन एक नई अपॉर्चुनिटी इसके कारण तैयार होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि एआई इज़ देयर टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। आप जो चीज़ आज बाय फोर्स ऑफ एक्स कर सकते थे वो बाय फोर्स ऑफ x+10 कर सकते हैं, ये उसका फायदा है। वन लाइन, वेरी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, एक लाइन में, इफ देर आर मेनी फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, एंटरप्राइज लीडर्स इन दिस रूम, बहुत लोग इसको देखेंगे, तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम, व्हाट डज महाराष्ट्र वांट फ्रॉम फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, एंटरप्राइज लीडर्स टू अचीव योर टारगेट इन अ शॉर्ट लाइन? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि राइट नाउ महाराष्ट्र इज द बेस्ट प्लेस टू इनोवेट, महाराष्ट्र इज बेस्ट प्लेस टू इंक्यूबेट, महाराष्ट्र इज बेस्ट प्लेस टू क्रिएट एंड को क्रिएट। और ये सारी इकोसिस्टम हमने तैयार की हुई है। आज महाराष्ट्र में चूंकि देश का स्टार्टअप हब भी महाराष्ट्र बना है जी, देश के सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स यहाँ पर है, देश के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स यहाँ पर है, और हम लोगों ने पॉलिसी लेड इस प्रकार का एक अप्रोच रखा है। सो पॉलिसी लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी अलग अलग पॉलिसी, सेक्टोरल पॉलिसी, वी हैव क्रिएटेड 25 सेक्टोरल पॉलिसीज। इन पॉलिसीज़ का फ़ायदा लेकर आप लोग अगर यहाँ पर इनोवेट करते हैं, हम लोगों ने उसके साथ साथ कुछ फंड्स भी तैयार किए। हम लोगों ने फंड ऑफ फंड तैयार किया है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स भी हम लोग ला कर देते हैं, अप्रूवल्स बहुत फास्ट हम लोग देते हैं। देखिए, हमने एक चीज़
ये समझ लिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दो चीज़ें ही डिटरमिन करेगी कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएंगे कि नहीं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वी आर द बेस्ट, पर मैंने ये अप्रोच रखा है कि मैंने देश भर में मैपिंग किया कौन सा स्टेट कौन से सेक्टर में नंबर 1 है, और मेरा पहला काम यह है कि मैं वहाँ तक अचीव करूँ, उसके बाद मैं ग्लोबल स्टैंडर्ड अचीव करूँगा। तो धीरे धीरे हर सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं नंबर 1 होना चाहता हूँ, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को मैं नीचे लाना चाहता हूँ, स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये 3 चीज़ें अगर हम लोग दे दें तो हमारे यहाँ पर इतने ब्राइट माइंड्स है कि वो पूरे इस स्पेस को डिसरप्ट करके जी डिसरप्शन फॉर द गुड ये लोग कर पाएंगे। मुझे लगता है आज के सेशन के बाद दिस कुडंट हैव बीन अ बेटर वन ऑफ द ओपनिंग सेशंस। जितने लोग हैं इसको देख रहे हैं, दे विल बी वेरी मोटिवेटेड। यू आर मोटिवेटेड, राइट? आई एम वेरी एक्साइटेड। यू टॉक लाइक अ you talk like a super CEO, Mr. Chief Minister. Thank you so much. And I think you will achieve your target before 2030. Thank you. We wish you all the best. Let's have a round of applause Thank you. for Devendra Fadnavis. Thank you very much Thank you so for much. coming to Imagine X, sir. Thank you. Thank you.